Now let us look into this diagram again. तो ये हमारा जो मेगास्पोर, तो the megasporocyte inside the ovule undergoes meiosis resulting in 4 megaspores. तो जो हम मोनोस्पोरिक केस देख रहे हैं उसमें 1 will form 8, अगर बाइस्पोरिक है 2 will form 8, अगर टेट्रास्पोरिक है 4 will form 8. Understood? So accordingly now you know how many mitosis have to divide. So now the surviving megaspore divides by mitosis to form 8 haploid nuclei. ठीक है? And ये जो haploid nuclei है, they rearrange to produce the mature embryo sac. है ना? So simple and beautiful ये आपका दे दिया है. चलिए, so now we will go to our board and इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो वेरिएशंस. हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल डिस्कस करेंगे, वेरिएशन फिर डिस्कस करेंगे. नाउ दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक, है कि नहीं? तो हमारा जो एम्ब्रियो सैक है उसका डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है. तो ना जो सिनर्जिड और हेल्पर सेल्स, ओके, जो सिनर्जिड एंड और हेल्पर सेल्स हैं, द नंबर ऑफ सिनर्जिड्स इज जनरली 1 इन पेपरोमिया एंड नन इन प्लम्बागो. ओके, ये अगेन देख रहे हैं एक्सेप्शन है. So the number of synergids is generally 1 in peperomia and none in plumbago and plumbagella. These cells generally possess a micropylar nucleus and a chalazal vacuole. Okay, the electron microscope studies have revealed that the synergids lack a cell wall. समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सब यूनिक चीजें हैं उसके बारे में. On their chalazal side at the maturity, they are characterized by the presence of filiform apparatus. तो इससे आप पहचान लोगे. It is in the form of finger-like projections. Each projection comprises, okay, each projection comprises a core of microfibrils. ठीक है? Each projection comprises a core of microfibrils enclosed in a sheath. ठीक है? तो इसलिए ये उनका जो बेसिक फंक्शन है. So now the synergids perhaps, so actually what is that of? Usually one synergid starts to degenerate just with pollination. The synergids perhaps secrete some chemotropic substances. माने जो pollen ट्यूब है वो उसी के तरफ क्यों आ रहा है? तो ऐसा लोग सोचते हैं कि कुछ वो केमिकल्स रिलीज कर रहा है जो pollen ट्यूब को उसके तरफ बुला रहा है. तो usually one synergid, okay, usually one starts to degenerate just with pollination. The synergids perhaps secrete some chemotropic substance and thus direct the pollen tube growth inside embryo sac. ठीक है? तो इसलिए वो pollen tube को अपने तरफ बुला रहा है. Second is egg. The egg shows cytoplasmic polarity opposite to synergid and its wall is thicker at the micropylar end. ठीक है? इसका जो एग का वाल माइक्रोपाइलर एंड में थिक है जबकि सिनर्जिड्स का वाल चलाजल एंड में थिक है. यूजुअली द एग हैज माइक्रोपाइलर वैक्यूल एंड ए चलाजल न्यूक्लियस. मतलब न्यूक्लियस दूर के तरफ होगा एंड वैक्यूल नीचे की तरफ. बिकॉज यू नो प्लांट सेल्स उनका सबसे बड़ा ऑर्गन इज वैक्यूल, है कि नहीं? Now plasmodesmata are present in between the egg and synergid. ठीक है? Antipodals, while in most plants there are 3 antipodals, in ZMAs 20 antipodal cells are present. Okay, तो देख रहे हो? इसलिए variations तो जबरदस्त है. इसलिए हम लोग को we have to be ready for all those things. ठीक है जी? And उनका जो main function है वो आपका होना चाहिए. तो ZMAs माने कौन हो? मक्का. In ZMAs you can write here bracket में maize. 20 antipodal cells are present. In Sassa paniculata, there are 300 in number.
This is perhaps the highest number recorded for any plant. ठीक है जी. उसके बाद these are absent in Inothera type. देखिए एटा सब वेरिएशन है गेला हमरा. तापरे central cell. It is the largest cell of the embryo sac, contains two polar nuclei which fuse just before fertilization to form a secondary nucleus. तो ये ध्यान रखेंगे कि जब तक वो अलग हैं, so they are called polar nuclei. जब वो fuse कर जाएगा, they are called what? Secondary nucleus. Now after fusion ये आपका क्या बनाएगा? This will make the pen और primary endosperm nucleus. ठीक है. So ये आपका embryo sac का different types of variations है. Now उसके बाद हम लोग चले जाएंगे. अब हमारा माइक्रोस माने उधर रेडी है कौन? देयर आपका pollens are ready with the architecture, that is the pollen is the male embryo sac, male gametophyte. इधर आपका जो ovule is also ready and उसमें भी हमारा gametes बन के तैयार है. So अब जो next topic हमारा है that is called pollination. है कि नहीं? Because Mia Raji and BB Raji आप दोनों को मिलाना पड़ेगा ना, because they are immotile organisms, so you have to make them meet. So इसीलिए अब उसको meet कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे? We will go for pollination. So now we have different types of pollination concepts. तो उस दिन मैं आपको दिखा रहा था वो वाला जो in case of जो ऑफ्रिस में क्या है आपका पॉलिनेशन जो हो रहा है, इट इज असिस्टेड बाय हुम? इट इज असिस्टेड बाय अ मेल कॉल्पा या मॉर्मन, है कि नहीं? तो इसीलिए ये सब अलग अलग कंसेप्ट्स हैं. नाउ अगेन व्हाट इज योर टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड दैट विल डिसाइड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यू विल अट्रैक्ट, प्लस आपका लोकेशन क्या है, कैसा है. तो उस आधार पे हम लोग पॉलिनेशन को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करेंगे. सो नाउ इन केस ऑफ एनसीईआरटी हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल गो टू अदर टाइप. तो इसलिए एनसीईआरटी रे कौन देखो छी पॉलिनेशन आगाम पढ़ दवा तापरे स्पेशल टॉपिक्स को जीवा. नाउ pollination is the mechanism to achieve the objective of transfer of pollen grains, okay, from the anther to the stigma. Okay, the transfer of pollen grains from the anther to the stigma, it is referred to as pollination. Now flowering plants have evolved an amazing array, because आपको मालूम है that इनके पहले जो था they were cryptogams, they hid their marriages, है कि नहीं? बट ये लोग फूल वूल बना के बता रहे हैं, देखो we are going to have marriage. Okay, इसलिए flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollinations. They make use of external agents to achieve pollination. जबकि आप देखते हो ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स, वो लोग क्या करते हैं? They depend on water, है कि नहीं? तो इस तरह से. Now काइंड ऑफ पॉलिनेशन, अब उसमें फर्स्ट टाइप है ऑटोगैमी. ऑटोगैमी का मतलब क्या? इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, है कि नहीं? माने उसी फ्लावर में मेल है, उसी फ्लावर में फीमेल है, एंड देयर इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ठीक है? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑटोगैमी. ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्स सिंक्रोनी. क्रोनस मतलब टाइम, सिन मतलब सेम. तो एक्चुअली आपका जो टाइम ऑफ पॉलिनेशन है इट शुड बी सिंक्रोनस, है कि नहीं? माने जिस समय पॉलन राइप होगा उसी समय एग को भी राइप होना चाहिए. अगर आपका पॉलन बिफोर एग राइप कर रहा है या अगर एग बिफोर पॉलन राइप कर रहा है तो एनी ऑफ सच थिंग्स कैन नॉट हैपन. अंडरस्टूड? तो इसीलिए सेम टाइप में राइपन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑटोगैमी के. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट पॉइंट. सर हाँ बोलो.
सर ऑटोगेमी रे जदि सर हाइपोगाइनस कंडीशन थो ताहले भी तो ऑटोगेमी हे परिबनी। सुनो, अभी हाइपोगाइनेस का मतलब क्या है बताओ। सर मतलब वो एंथर और मतलब अदर फ्लोरल पार्ट्स अदर देन gynoecium will be situated at a level below। अरे अगर लेवल गाइनोशियम का बिलो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाइनोशियम का अबव हाँ द स्टेमन नहीं होना चाहिए, बुझ लो कि नहीं। एक्चुअली आगे सर। एंथर झड़ेगा ना, तो इफ हाँ गाइनोशियम नीचे है एंड स्टेमन ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई अगर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टिग्मा ऊपर है एंड एंथर नीचे है तो उसके वी विल डिस्कस, आप तो चिंता क्या कर रहे हो। यस सर। जी यस सर। ऑलवेज रिमेम्बर डोंट डिस्टर्ब द क्लास, क्योंकि ये सब वी विल डिस्कस। इस देखो 12 मार्क मतलब आई कैन स्पेंड वन होल मंथ ऑन दिस टॉपिक। ओके यू नो जजेस दैट आई विल नॉट लीव एनी टॉपिक, ठीक है। तो इसीलिए आप आराम से रहो। एटा एक्चुअली कौन है, यू कैन नॉट से कि सर हमारे एनसीईआरटी लाइन लाइन पढ़े लेनी, मैं तुम्हारे सामने किताब खोल के करा रहा हूँ। अब यस इससे सर। ये जूम का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको किताब लाने का जरूरत नहीं है। आई एम शोइंग यू एटा सॉरू, देन वी विल डिस्कस द एक्सेप्शंस, फाइन। यस क्योंकि सर। ना यस जब तक हम नॉर्मल नहीं समझेंगे एक्सेप्शंस आप उसको समझ नहीं सकते। ओके, यस सर। दैट्स अ ब्यूटीफुल बुक। इवन आपको मैं याद है 11th में बताया हूँ कि आपको जो एसी दत्ता, तो एसी दत्ता से आपका ये जो क्लासिकल बायोलॉजी बॉटनी कर लोगे ना तो बहुत चीज बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो यू डोंट वरी, यस सर। आई विल गिव यू ऑल। ओके, I may not be a genius in botany, but I am a very good collector. I will collect and show it to you. Finished. Okay. अब आपको उसको याद रखना है। चलिए ना, अब देखिए यहाँ। ओके, सम प्लांट सच एज वायोला, इसको पैंसी जो है हमारा, ऑक्सालिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ओके, कैस्मोगैमस फ्लावर। तो व्हाट इज कैस्मोगैमस फ्लावर एंड क्लेइस्टोगैमस फ्लावर, ये दो अलग अलग तरह के फ्लावर्स वो लोग बनाते हैं, समझ रहे हो। कैस्मोगैमस फ्लावर्स माने which are similar to flowers of other species with exposed anthers and stigma, means ये bisexual है एंड इसका सारा कुछ खुला हुआ है। बट क्लेइस्टोग्लैमस फ्लावर्स which do not open at all, तो इसको हम लोग क्लोज फ्लावर बोलते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए कैस्मोगैमी का मतलब क्या है, सपोज either the petals are open, the stigma is open to outside and the anthers are also open to outside। माने इसमें क्या है, this may promote self pollination or cross pollination, understood। but क्लेइस्टोगैमी का मतलब क्या है, फ्लावर इज क्लोज्ड। तो जब फ्लावर क्लोज है, स्टिग्मा भी अंदर एंड स्टेमन भी अंदर, तो इसका मतलब क्या है, देयर कैन नॉट बी, दिस इज देयर इज नो क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए इन कैस्मोगैमस फ्लावर सेल्फ, सी बोथ वर्ल्ड्स टुगेदर है, तो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, बट सिंस इट इज ओपन, हवा से, इंसेक्ट्स के द्वारा आपका पॉलन बाहर भी जा सकता है। बट क्लेइस्टोगैमस फ्लावर में ये मुमकिन नहीं है, अंडरस्टूड। सो दे आर द सेम फ्लावर। ओके, द बोथ द स्टिग्मा एंड एंथर दे आर क्लोज्ड विद इन द फ्लावर। ओके, सो इसलिए उसको ध्यान रखिए। नाउ so इसीलिए क्लेइस्टोगैमस, कैस्मोगैमस flowers which are similar to other types and cleisto flowers which is do not open at all. In such flowers, the anther and stigma lie close to each other. When anther dehisce in the floral buds, pollen grains come in contact with the stigma and effect pollination. तो इस ये अंदर ही अंदर आपका pollination हो जाता है, फ्लावर खुलने का भी जरूरत नहीं। Now thus cleistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollination। क्यों, अरे खुलेगा नहीं तब बाहर से स्पर्म आएगा कैसे, बाहर से पॉलन आएगा कैसे। प्लस एक बार पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद जितना मर्जी पॉलन आए कोई मतलब ही नहीं है, अंडरस्टूड। एटा खोलिया पूर्वरु फर्टिलाइजेशन सरुच, तो इसलिए खुलने के बाद दुनिया भर का पॉलन आए ना, मैं क्या करूंगा।
it is of no use. Prevention to polyspermy, same concept. Okay. Now, Cleistogamous flower produce assured seed set. ये आपका very important term है, ये genetics का terminology है. Assured seed set. इसका मतलब वही बनेगा जो बनना है, इधर टेढ़ा मेढ़ा होने का चांस नहीं है. Understood? Fine. So there is no chance of टेढ़ा मेढ़ा. Fine. So इसीलिए if so in these flowers मेल फीमेल फिक्स्ड, तो अगर मेल का प्रॉपर्टी ये है, अगर फीमेल का प्रॉपर्टी ये है, तो बच्चे का प्रॉपर्टी ये हो. अंडरस्टूड? तो जैसे हम लोग अगर दिस पी प्लांट ऑफ मेंडल, दिस इज आर क्लेस्टोगैमस प्लांट, है कि नहीं? तो जो पी प्लांट ऑफ मेंडल है वो क्लेस्टोगैमस प्लांट है. तो इसीलिए उसका भी अगर कैपिटल टी है तो सीड क्या होगा? पॉलन भी कैपिटल टी होगा, एग भी कैपिटल टी होगा, बच्चा भी क्या होगा? कैपिटल टी. अगर पेड़ कैपिटल टी स्मॉल टी है तो सपोज एंथर इज कैपिटल टी, पॉलन इज कैपिटल टी, तो दोनों टी होगा. अगर कैपिटल टी है एंड स्मॉल टी है तो टी स्मॉल टी भी हो सकता है. अंडरस्टूड? बट आपका तो इसीलिए डिपेंड करता है कि आपका श्योर शॉट बच्चा बनेगा. देयर इज नो केस ऑफ एनी कॉन्टेमिनेशन. Okay, so do you think that cleistogamy is advantageous or disadvantageous? Bolo. This is a very good discussion topic. Bolo. Is cleistogamy good or bad? दोनों हो सकता है. For example, आप वही फल चाहते हो जो मेरे घर खाए थे, तो हमें मो घरे गोटे फल खाई लो. Actually, one of my friends, this Anisha, जिसने उसको रेफर किया था, आदित्य भाई, तो आदित्य gave me a banana and वो इतना मीठा था वो बनाना, गुड हेवेंस, इट वाज सो स्वीट. बट जब हमने उसको प्लांट किया हमारे घर में, वो स्वीटनेस आया नहीं. उसका एक कारण क्या हो सकता है? क्रॉस पॉलिनेशन. ये अनिशा का भेजा आउट है. ऑलवेज सर्च आंसर. भाई प्रॉब्लम तो हजार होगा ना. अब जैसे तुम कोविड हॉस्पिटल में जाके सर्दी का कारण बोलोगे वायरस अटैक हो गया दूसरा, तो वो मारेगा नहीं. तो इसीलिए वहां आंसर ढूंढो जहां है. तो यही केस रे हमें कौन देखुचे कि व्हाई इट इज नॉट सेम. शायद क्रॉस पॉलिनेशन हो गया है. ओके, मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया है. बिकॉज एक्चुअली जो माने दिस क्लेस्टोगैमी, इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है? वेरिएशन नहीं हो रहा है. उस लिहाज से इसका रिजल्ट एसेक्सुअल जैसा है. डोंट से क्लेस्टोगैमी इज एसेक्सुअल. बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि सिंस वही बनेगा, शॉर्ट सेट बन रहा है, तो इट्स अ टाइप ऑफ नो वेरिएशन कंसेप्ट. ओके. बट अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा है, तो इसीलिए वहां वेरिएशन का होना क्या है? अच्छा है. ओके, तो वहां वेरिएशन का होना अच्छा है. अंडरस्टूड? सो इसलिए बोथ द साइड्स यू कैन टॉक. नाउ ऑटोगैमी हो गया. सेकंड इज गाइटोनोगैमी. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. ये 3 वर्ड समझो, बाकी मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा. गाइटोनोगैमी कौन है? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of another flower of the same plant. समझ रहे हो? माने इस पेड़ का मेल फ्लावर इसी पेड़ के एक और फीमेल फ्लावर को फर्टिलाइज कर रहा है. ओके, so this is called gaetonogamy. Although gaetonogamy is functionally cross pollination, genetically it is similar to autogamy. समझ? ये एक्सप्लेन करो. हाँ, एक्सप्लेन करो इसको. सर क्योंकि मतलब 2 अलग अलग फ्लावर है पर सेम प्लांट है तो जेनेटिक कंपोजिशन एक होगा. यस, तो प्लांट का जेनेटिक सेम होगा. अगर वो होमोजाइगस टॉल है तो दोनों ही टॉल होगा. अगर वो होमोजाइगस ड्वार्फ है तो दोनों ही ड्वार्फ होगा. एंड अगर वो हेट्रोजाइगस है तो जो इस फ्लावर का कंपोजिशन है वो उस फ्लावर का भी कंपोजिशन होगा. तो अंडरस्टैंड? तो एक टॉल में आप सडनली एक ड्वार्फ बच्चा नहीं पा सकते. सो दैट इज द कंसेप्ट.
इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर जेनेटिक्स में यू हैव टू स्टार्ट विद अ प्योर ब्रीडिंग प्लान. व्हाई मेंडल गॉट रिजल्ट इन 1800 एडी जबकि एग्रीकल्चर बीसी में शुरू हो चुका है. बुझिला ये जो पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन, दिस जो हम लोग ऑल द गुटी फुटी थिंग्स वी डिस्कस्ड, ग्राफ्टिंग, दिस चाइनीज क्या वो बोनसाई, all these started way back in the BC. But why Mendel gave result in AD, that to 1800 AD? उसका मेन रीजन है कि मेंडल ने बोला कि मैं डिसिप्लिन मैनर में एक्सपेरिमेंट करूंगा. आई विल स्टार्ट विथ प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स. बट उसके पहले जो लोगों ने किसी मर्जी से शुरू कर दिया, तो जब किसी मर्जी से शुरू किया तो रिजल्ट कुछ मर्जी आया. देयर वाज नो सिमिलरिटी. बुझिल कि नहीं? तो सेपे जेबे हमें जेनेटिक्स करिबा, हमें प्योर ब्रीडिंग प्लांट नेबा, तो देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग ए डिफरेंट सीड सेट. हैला. Now why tall and dwarf gave heterozygous, and why heterozygous tall gave dwarf also? Because of crossing. समझे कि नहीं? आपने टॉल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस किया, फिर उसको सेल्फ किया, तो ऑब्वियसली दोनों गैमिट है, तो आपको दोनों बच्चा मिलेगा. बट दैट डज नॉट मीन कि टॉल पेड़ आपका ड्वार्फ हो गया. अंडरस्टूड? तमे यदि टॉल को टॉल संगे क्रॉस करी था तो ताहले एटा हे ना था. तो गाइटेनोगैमी मींस सेम प्लांट but different pollens are in different flowers are involved in fertilization. ठीक है जी? तो just like that. तो although gaetonogamy is functionally cross pollination, but it is genetically self fertilization. उसके बाद आ जाएगा जीनोगैमी. जीनोस का मतलब ही डिफरेंट होता है. Always remember, जीनोस means different. So transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a different plant. Okay, this is the only type of pollination which during pollination brings genetically different pollens and stigma. Okay, इसका मतलब कोई और पार्ट कोई और प्लांट के साथ आप क्रॉस करा रहे हो. ठीक है जी? सपोज आम घर अमृतभंडा और अभिषेक घर अमृतभंडा भितर आमे क्रॉस करा, so that is called what? That is called xenogamy. उतना भी नहीं, मैं एक पेड़ लाया हूं, मेरे घर में 2 केले का पेड़ है, या सपोज मेरे घर में 2 एप्पल का पेड़ है या कोई और पेड़ है, तो उनमें क्रॉस हो रहा है, तो दैट इज आल्सो xenogamy. ओके नहीं? तो लाइक दैट. कैन यू टेल मी व्हेन, देखो ये और इसको कहते हैं खेलना इसके साथ. तो अब हम लोग 2 अलग अलग पेड़ को क्रॉस कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो गाइटेनोगैमी है. कैन यू एक्सप्लेन? सर अगर दोनों का सेम जेनेटिक कंपोजिशन होगा, मतलब मैंने कहां से आया वो? उस पेरेंट से ही. सेम पेरेंट. सोचो सोचो सोचो. सेम पेरेंट ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो सपोज मेरे घर में गोटे मंदार गछ अछि, ता डालटा भांगिला, ता डालटा मु पाखर लगे देली, अब आपस में इनका पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये जेनेटिकली क्या है? वो सेम है. ओके, सो इट इज आल्सो, देखो ये कंसेप्चुअली गाइटेनोगैमी है, बट इट इज एक्चुअली जीनोगैमी. हैला. अरे तमे सिना जानिचो सेटा एई गछर ब्रांच टा बेली, otherwise so like that. So it is conceptually gaetano, but actually this is xeno. चलिए, तो इसीलिए ये आपका एनसाइडी पॉलिनेशन हम अगले बार डिस्कस करेंगे, तो इसका हम वेरिएशन डिस्कस कर लेंगे. ठीक है? सो डिफरेंट टाइप्स हम लोग उसका वेरिएशन डिस्कस कर लेंगे. नाउ उसमें आपका एग्जांपल लिखा जाए. एयरटेल नेटवर्क था, तो एयरटेल नेटवर्क का सब फॉलो रोच आइडिया और ये सब बदमाश
आइडिया भल थिला जो वोडाफोन हला पर बदमाश है वोडाफोन चोर सर है आज ठीक है नहीं वोडाफोन चोर है एक्चुअली मेरा पहले से ही वोडाफोन था ना तब से बदमाश है वोडाफोन आज तो ठीक है सर कम अच्छे जियो रो भी स्पीड बहुत कम अच्छे कौन सर आज जियो रो भी नेटवर्क बहुत कम अच्छे हाँ डाउन बहुत अच्छे बहुत मेरा तो काट रहा था ना इससे वो मैं जियो से ही कर रहा था आइडिया से कर रहा था मैं काट के फिर आई चेंज टू एयरटेल एयरटेल टा जो भलो अच्छे देखो बहुत सारे टीचर्स लोग का एक ही से नेटवर्क है तो वो लोग कैंसिल कर रहे हैं क्लास बट तुम देखो मेरा एक भी क्लास कैंसिल नहीं हुआ अभी तक स्कूल में भी आप देखोगे चलिए सो सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी तो इफ द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड सेम ओके दिस इज ऑटोगेमी ना इसमें देखो कॉन्ट्रीवेंसेस ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स हियर तो इसमें देखिए बाइसेक्सुअलिटी फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल तभी जाके आपका ऑटोगेमी हो सकता है होमोगेमी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम तब उसको हम होमोगेमी बोलेंगे ओके क्लेइस्टोगेमी sometimes bisexual flowers remain closed and never open such flowers are known as cleistogamous okay तो इसमें आपका अलग अलग एग्जाम्पल है ठीक है जी लाइक आपका जो वायोला ये सब दिया ही है ऑक्सैलिस एक्सेट्रा नाउ बर्ड एंड बर्ड पॉलिनेशन जो आपका बर्ड स्टेज में ही हो जाए व्हेन सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स इन द बर्ड स्टेज बिफोर ओपनिंग ऑफ द फ्लावर्स फूल खुला नहीं अंदर ही काम चला हो गया सो दैट इज कॉल्ड योर कॉन्ट्रीवेंसेस टू फॉर सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ये सब कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके लिए कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है एक्चुअली नेचर नहीं चाहता सेल्फ पॉलिनेशन am I right or am I wrong nature does not want self pollination sir right right because yes variation is needed yes but why we want self pollination because हमको वही Desire. फ्रूट चाहिए yes sir यस एग्रीकल्चर मीन्स सही सही लाउटा मते दरकार तो जब आप सही बोल देते हो व्हेन यू आर डिमांडिंग ए स्पेशल सेट ऑफ प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इट विल बिकम व्हाट इट इज योर सेल्फ पॉलिनेशन किंतु नेचर चाहता है वेरिएशन ओके तो ये आप याद रखेंगे तो गाइटेनोगामी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड तो इतने देइछि किसी वेरिएशन नहीं क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगेमी ओके एलोगेमी बहिरे तमर देछि एटा जीनोगेमी एक्चुअली यू नो द एनसीईआरटी टर्म इज रॉन्ग एलो और जीनो में डिफरेंस क्या है कोई बताएगा मेरे को बोलो ये जूलॉजी में समझ में आ जाना चाहिए सी एलो मतलब एठी से क्लियर करछि देखो एई तरह when the pollen grains are transferred from the anther out to the stigma of the flower of another plant of same species तो सेम स्पीशीज अगर है तो ये एलोगेमी होता है डिफरेंट स्पीशीज में अगर है तो ये जीनोगेमी होगा ये आप लोग भूल गए हो मैं आपको ग्राफ्टिंग में पढ़ाया हूं ओके ऑटोग्राफ्ट एलोग्राफ्ट जीनोग्राफ्ट तो ऑटोग्राफ्ट तुम्हारा तुम्ही में है आइसोग्राफ्ट आइडेंटिकल ट्विन तापरे किसी अदर सेम स्पीशीज से एलोग्राफ्ट और अगर हाथी गाधे का लगाया दैट इज जीनोग्राफ्ट देख लो तो देखो एनसीईआरटी में ये टॉपिक क्लियरली नहीं दिया है तो अगर क्रॉस पॉलिनेशन सेम प्लांट है तो वो माने सेम प्लांट डिफरेंट माने सेम स्पीशीज डिफरेंट प्लांट तो वो एलो है डिफरेंट स्पीशीज है वो जीनो है तो जनरली डिफरेंट स्पीशीज से क्या होगा आपका प्रोडक्ट नहीं बनता है ओके बट डिफरेंट वैरायटी हो सकता है ठीक है नहीं तो इस तरह से ये आ जाएगा नाउ इट इज क्रॉस पॉलिनेशन बोथ जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकल ओके तो जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको जेनेटिकली भी क्रॉस है क्योंकि वेरिएशन लाता है इकोलॉजिकली भी क्रॉस है क्योंकि अलग अलग जोन से पॉलेन्स आते हैं ठीक है तो ये आपका पॉलिनेशन के टाइप्स हैं ना उसके बाद हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे और थोड़ा वेरिएशन जो हमने कॉन्ट्रीवेंसेस टू
मैंने एसेक्सुअल क्या कॉन्ट्रीवेंसेस टू ये किया। अब हम लोग कॉन्ट्रीवेंसेस टू क्रॉस पॉलिनेशन भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन कॉन्ट्रीवेंस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे भाग्य से। Okay, now these are the contrivances to cross pollination. Copy properly. Now, अब contrivances to cross pollination. ओके, तो क्रॉस पॉलिनेशन जो हो रहा है उसके बाद उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए एंड उसमें क्या क्या वेरिएशंस हम देख सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस हियर। ओके, नाउ नंबर 1 यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लिनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखेंगे। इसको हम लोग कैप्स में लिख देने से अच्छा है, डाइक्लिनी। ओके, इसका मतलब क्या है, आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, मींस पेड़ में दो अलग अलग सेक्स का फ्लावर है ही नहीं। सपोज आपके पास पपीते का मेल फ्लावर है एंड फीमेल प्लांट है, तो दो अलग अलग है, तो इसलिए उधर गाइटेनोगैमी नहीं हो सकता आपका। यू हैव टू गो फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। सो एलोगैमी बिकम्स ऑब्लिगेट या कंपल्सरी। ओके, नाउ it can be seen in monoecious plants where both male and female flowers are produced on same plant. Example, maize as well as dioecious plants. ये exception है। Okay, इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे, it can be seen in monoecious plants where both male and female are produced on same plant. Example, maize as well as, ये इसको हम B कर देंगे, as well as dioecious plants where male and female flowers are produced on different plants. तो अब यहाँ देखिए, now जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो इधर मोनोशियस प्लांट where both male and female produced है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, ये आपका एक मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है, बट एक ही प्लांट है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोनोशियस ना। तो उधर आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। ओके, हमने डिस्कस किया था दैट क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी योर माने क्या गाइटेनोगैमी और इट कैन बी योर एलोगैमी। तो इस केस में क्या हो रहा है, तो ये जो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ टाइप ऑफ माने गाइटेनोगैमी है ना। बट इधर क्या हो रहा है, डायोसियस प्लांट्स है, मेल फीमेल फ्लावर्स टोटली अलग हैं, तो इसीलिए ये आपका हो जाएगा क्लियर कट आपका एलोगैमी। ठीक है, डाइकोगैमी इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स द टू सेक्सेस मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। मतलब स्टेमन जब रेडी है, एग रेडी नहीं। ओके, तो व्हेन एंथर्स